Hello students, welcome to Gyan Nidhi classes. Today we are going to start chapter number 6, Understanding Media. Understanding Media. What is your favorite TV program? What do you like listening to on the radio? Which newspaper or magazine do you usually read? Do you surf the internet and what have you found most useful about it? Did you know that there is one word that is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet, and several other forms of communication? This word is media. In this chapter, you will read more about the media. You will find out what is required to make it work as well as the ways in which the media affects our daily lives. Can you think of one thing that you have learned from the media this week? यहाँ पे ये बताया गया है संचार माध्यमों को समझना। जैसा कि टेलीविज़नों पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है, प्राय आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं, क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं, आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है, क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह शब्द है मीडिया। इस पार्ट में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? Everything ranging from the stall at the local fair to the program that you see on TV can be called media. Media is a plural form of the word medium, and it is describes the various ways through which we communicate in society. Because media refers to all means of communication, everything ranging from a phone call to the evening news on TV can be called media. TV, radio, and newspapers are a form of media that reaches millions of people or the masses across the country and the world, and thus they are called mass media. इसका मतलब है, यहाँ बताया जो गया है, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, प्लूरल है, और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम, क्योंकि मीडिया का जो संदर्भ है संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है, इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं हम। Media and technology. It would probably be difficult for you to imagine your life without the media, but cable television and the widespread use of the internet is a recent phenomenon. These have been around for less than 20 years. The technology that mass media uses keeps changing. यहाँ पे बताया गया है, आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी बहुत कठिन होगा, लेकिन केबल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। न्यूज़पेपर, television and radio can reach millions of people because they use certain technologies. We also tend to discuss newspapers and magazines as the print media and TV and radio as the electronic media. Why do you think newspapers are called print media? As you read further, you will find that this meaning is related to the different technologies that these media use. The following photographs will give you a sense of the ways in which technology the mass media uses has changed over the year and continue to change. यहाँ पे बताया गया है, अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए
माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा इस बात का कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली और आज भी बदलती जा रही है। Changing technology or machines and making technology more modern helps media to reach more people. It also removes our quality of sound and the images that you see, but technology does more than this. It also changes the ways in which we think about our lives. For example, today it is quite difficult for us to think for our lives without television. Television has enabled us to think of ourselves as member of a large global world. टेलीविज़न इमेजेस ट्रेवल ह्यूज यहाँ पे बताया ये गया है कि तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के distance through satellite and cable. This allows us to view news and entertainment channels from other parts of the world. Most of the cartoons that you see in television are mostly from Japan or the United States. We can now be sitting in Chennai or Jammu and can see images of a storm that has hit the coast of Florida in the United States. टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। यहाँ पे ये बताया गया कि टेलीविज़न के बिना हमारा जो जीवन है उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत कठिन है हमारे लिए। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को आसानी से देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत ही पास ला दिया है। जैसे पुराने टाइम पे जो मशीन्स चला करती थी, जैसे पिक्चर में गिवन है यहाँ पे दे रखा है, 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव उस समय आ गया। मीडिया एंड मनी. The different technologies that mass media use are expensive. Just think about the TV studio in which the newsreader sits. It has lights, cameras, sound, recorders, transmission satellites, etc. All of which कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ पे बताया गया है संचार माध्यम और धन, इन दोनों का आपस में कैसे संबंध होता है। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है यानी न्यूज़ एंकर। इसमें सैटेलाइट, कैमरे, साउंड रिकॉर्डर यानी साउंड की रिकॉर्डिंग करने के लिए यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का जो मूल्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। यहाँ पे साइड में एक इमेज दे रखी है, इसमें आप देखेंगे ये जो है यह एक यंत्र है जिसे टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। ये अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं कौन? जॉन एल बेड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। In a news studio, it is not only the newsreader who needs to be paid, but also a number of other people who help put the broadcast together. This includes those who look after the cameras and lights. Also, as you read earlier, the technologies that mass media use keep changing, and so a lot of money is spent on getting the latest technology. Due to these costs, the mass media needs a great deal of money to do its work. As a result, most television channels and newspaper are part of big business houses. यहाँ पर बताया गया है कि समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग होते हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वो लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है इन पर। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं।
Mass media is constantly thinking of ways to make money. One way in which the mass media earns money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phones, etc. You must have noticed the number of advertisements that you have to see while watching your favorite television show. While watching a cricket match on TV, the same advertisements are shown repeatedly between each over, and so you are often watching the same image over the and over again. As you will read in the following chapter, advertisements are repeated in the hope that you will go out and buy what is एडवर्टाइज्ड। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कि कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को जब आप देखते हैं तो उस समय आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने को मिलते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्राय बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे देखेंगे। आगे के अध्याय में भी आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, जहाँ पे विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है, यानी इनको रिपीट किया जाता है कि बाहर जाकर जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद जो जनता है वो उसको खरीदने की तरफ आकर्षित होगी और ज़्यादा मात्रा में उसको खरीदेगी। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, यानी कि संचार माध्यम और लोकतंत्र। In a democracy, the media plays a very important role in providing news and discussing events taking place in the country and the world. It is on the basis of information that citizens can, for example, learn how government works, and often, if they wish to, they can take action on the basis of these news stories. Some of the ways in which they can do this is by writing letters to the concerned minister, organizing a public protest, starting a signature campaign, आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एसेट्रा। यहाँ पे बात बताई गई है कि लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह कर सकते हैं। यहाँ पे साइड में आप देख पा रहे हैं कि पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि न्यूज़ चैनल की एजेंसी दिखाई दे रही है, जिसके नीचे लिखा हुआ है एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का जो मूल्य है उसकी लोकप्रियता के आधार पर 500 रुपये से लेके 8,000 रुपये के बीच पड़ता है। ये मूल्य जो होता है एक एडवर्टीजमेंट। Given the role that the media plays in providing information, it is important that the information be balanced. Let us understand what we mean by a balanced media report by reading two versions of the same news event given on the next page। यहाँ पे बताया गया है जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जो जानकारी होती है वो संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर हम ये देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कि एक ही समाचार के दो भिन्न रूपों को पढ़कर समझे कि संतुलित संचार माध्यम का क्या मतलब होता है और उसका क्या तात्पर्य होता है, और एक ही न्यूज़ दो तरीके से कैसे न्यूज़पेपर्स में छापी जाती है, लेकिन दोनों की लैंग्वेज और उनके बताने और समझाने का तरीका जनता को दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है। और कहीं जगह पर क्या होता है कि बैलेंस्ड न्यूज़ देखने को मिलती है और कहीं उसका पूरा का पूरा मीनिंग भी बदल दिया जाता है। यहाँ पे नीचे एक पिक्चर दी गई है जिसमें नीचे लिखा भी हुआ है द प्रिंट मीडिया ऑफर्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सूट द टेस्ट ऑफ डिफरेंट, यानी कि जितने भी पढ़ने वाले लोग होते हैं, रीडर्स होते हैं, उनकी पसंद के हिसाब से मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप की मैगजीन्स पत्रिकाएं छापी जाती हैं जो समय समय पर टाइम टू टाइम आती रहती हैं। यहाँ पे दो न्यूज़ दी गई है जिसमें फर्स्ट न्यूज़ में दिखा रखा है, लिखा हुआ है क्रैकडाउन ऑन पॉल्यूटिंग फैक्ट्रीज, और दूसरे में वही हेडलाइन दे रखी है क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज कॉजेज अनरेस्ट। तो दोनों का जो मतलब है वो एक ही है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग तरीके से जनता के सामने दिखाया गया है। जिसमें एक में लिखा हुआ है प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विद्रोहियों द्वारा चक्का जाम यातायात रुका जिसकी वजह से, और दूसरे में है कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। वीडियो को पॉज करके आप दोनों
न्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़ के इसके बीच में डिफरेंस और बैलेंस लिखी हुई पूरी की पूरी न्यूज़ रीडिंग को अच्छे से पढ़ सकते हैं। The fact is that if you had read either newspaper, you would only know one side of the story. If you had read the news of India, you would most likely think of the protesters as a nuisance. They are disrupting traffic and continually polluting the city with their factories, leaves you with a bad impression about them. But on the other hand, if you had read the story in the India Daily, you would know that the protests are because a lot of livelihood will be lost if the factories close, because the reallocation efforts have not adequate. Neither of these stories is a balanced report. A balanced report is one that discusses all point of view of a particular story and then leaves it to the readers to make up their minds. यहाँ पे ये बताया गया है, वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती, उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से बाहर में शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे क्योंकि पुनर्स्थापन से प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। Writing a balanced report, however, depends on the media being independent, and independent media means that no one should control and influence its coverage of news. No one should tell the media what can be included and what should be not included in a news story. An independent media is important in our democracy. As you read above, it is on the basis of the information that the media provides that we take action as citizens. So it is important that this information is reliable and not biased। यहाँ पे बताया गया है संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा है, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्यवाही करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। However, the reality is the media is far from independent. This is mainly because of two reasons. The first is the control that the government has on the media. When the government prevents either a news items or scenes from a movie or the lyrics of a song from being shared with the larger public, this is referred to as censorship. There have been periods in Indian history when the government censored the media. The worst of these were the emergency between 1975 to 77। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। बेसिकली सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी गीत के अंदर लाइन या फिर कोई ऐसा शब्द जिससे कि जनता के प्रति उसका बुरा प्रभाव पड़े, या फिर ऐसे फिल्म के कोई ऐसे सीन जिससे कि जनता के बीच में अच्छा मैसेज ना जाए, तो उस पर सेंसरशिप बोर्ड पूरी तरीके से रोक लगा सकती है, उसके किसी भी हिस्से को काट सकती है। तो जो ये कंट्रोल होता है संचार माध्यमों के ऊपर, ये सेंसरशिप का होता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय था 1975 से 77 तक, जब उस समय इमरजेंसी का टाइम था, आपातकाल था भारत में। What does TV do to us and what can we
डू विथ टीवी। यहाँ पे बताया गया है इस पैराग्राफ में कि टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी ही चलता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमें बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में हमें कैसे प्रभावित करता है ये आप बता सकते हैं ये कमेंट बॉक्स में। टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सास भी कभी बहू थी जैसे धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे कि बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। इस कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन आते हैं। क्योंकि टीवी का सबसे महत्वपूर्ण और महंगा होता है ये विज्ञापन, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित करते हैं। साथ ही साथ यही एडवर्टीजमेंट में आती है। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं, उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती है या नहीं दिखाई जाती। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के बारे में। हम यह सोचने की हमें ज़रूरत है कि हम टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्य को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह हमारे संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता भरा बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और बहुत ही पैसे वाले लोगों की जीवन शैलियों से भी परे एक ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाए। While the government does continue to censor films, does not really censor the media coverage of news. Despite the absence of censorship by the government, most newspapers nowadays still fail to provide a balanced story. The reasons for this are complicated. Persons who research the media have said that this happens because business houses control the media. At times, it is in the interest of these businesses to focus on only one side of the story. Media continual need for money and its link to advertising means that it becomes difficult for media to be reporting against people who give them advertisements. Media is thus no longer considered independent because of its close links टू बिजनेसेस। यहाँ पे बेसिकली बताया ये गया है कि सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का बहुत ही ज़्यादा नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इन विज्ञापन वाले जो लोग हैं वो इन बिजनेस हाउसेस से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, पैसे के लालच के अंदर, उनके लोभ में। Besides the above, the media also tend to focus on a particular aspects of a story because they believe this makes the story interesting. Also, they want to increase public support for an issue. They often do this by focusing on one side of a story. यहाँ पे बताया गया है कि इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। सेटिंग एजेंडाज,
यहाँ पे बताया गया है मसौदा तय करना कि इनका जितने भी बिजनेस हाउसेस होते हैं, बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं, एडवर्टीजमेंट कंपनी होती है, इनका एजेंडा क्या होता है। बेसिकली द मीडिया ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग व्हाट स्टोरीज टू फोकस ऑन एंड देयर फोर डिसाइड्स ऑन। यहाँ पे बेसिकली इस पैराग्राफ में जो सारी बातें बताई गई है वो यहाँ बताया गया है कि किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इनमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में एनुअल डे की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। ये Very recently, the media drew attention to alarming levels of pesticides in cola drinks. They published reports that indicated the high level of pesticides and thus made us aware of the need of regularly monitor these colas according to international quality and safety standards. यहाँ पे साइड में आप इमेज भी देख रहे हो, डाउन टू अर्थ सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स। यहाँ पे ये बताया गया है इस पैराग्राफ में अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोला पेयों में यानी ड्रिंक्स में कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बड़े होने की और हमारा इशारा किया था, हमें आकर्षित किया, बताया, हमारा ध्यान डाला। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से They did this despite the government resistance by boldly declaring that colas were unsafe. In covering this story, the media positively helped us focus on an issue that affects our lives and one that we might not even have been aware of it had it not been for media reporting. यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि इन सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट ना आती तो हमारा ध्यान भी कभी भी उस रिपोर्ट की तरफ या फिर उस बात की तरफ कभी जाता ही नहीं। यहाँ साइड में आप एक इमेज देख रहे हैं जो फैशन शो की पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। फैशन शोज आर वेरी पॉपुलर विद द मीडिया। आजकल फैशन शोज़ के अंदर बहुत ही टॉप मॉडल्स को लेकर आया जाता है, सेलिब्रिटीज़ को लेकर आया जाता है। जब भी किसी प्रोडक्ट या फिर कपड़ों की एक डिज़ाइनिंग रिलीज़ होती है उसके प्रोमो के लिए उनको लेकर आया जाता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और उन चीज़ों को खरीदने के लिए उनकी जो रुचि है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। There are several instances when the media fails to focus on issues that are significant in our lives. For example, drinking water is a major problem in the country. Every year, thousands of people suffer and die because they do not get safe drinking water. यहाँ पर बताया गया है पूरे पैराग्राफ के अंदर कि कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल भी रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर अपना स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया पर किसी ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ बॉक्स की तरफ एक नज़र डालते हैं। लोकल मीडिया, यहाँ पे बताया गया है कि यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसीलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं।
और कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्यों के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। यहाँ पे दूसरा उदाहरण जो बताया गया है वो है अब लहरिया नामक एक समाचार पत्र है यहाँ पे, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस 8 पत्र के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक है किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के टीचर और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। ऊपर देखते हैं, एज सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी द मीडिया हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन आवर लाइव्स बिकॉज इट इज़ थ्रू द मीडिया दैट वी हियर अबाउट इश्यूज़ रिलेटेड। यहाँ पे बताया जो गया है वो बात यह है कि प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। आगे है द मीडिया डिसाइड्स, आगे है जो मीडिया decides what to focus on, and in this way it sets the agenda. The government can at time prevent the media from publishing a story, and this is called censorship. Nowadays media's close relationship with business often means that a balanced report is difficult to come by. Given this, it is important for us to be aware that the factual information that a news report provides is often not complete and can do be one-sided. We therefore need to analyze the news by asking the following questions. What is the information I am learning from this report? What information is not being provided? From whose point of view is the article being written? Those point of view is being left out and why? यहाँ पे बताया गया है कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्राय संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायपूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती है। अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किस दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों। यहाँ लास्ट में सोशल एडवर्टाइजमेंट दी गई है, जैसे कि सोशल रिफॉर्म के लिए टाइम टू टाइम आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं जो कि जनता तक कुछ जानकारियाँ पहुँचाते हैं, उनमें अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम चलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अलर्टनेस इज़ अ की टू सेफ्टी। यहाँ आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ट्रेन आने पर किस तरीके से वहाँ पे फाटक बंद कर दिया गया है और सारी दोनों तरफ क्या है गाड़ियाँ रुकी हुई हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। रेड लाइट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो साथ ही साथ पानी का सदुपयोग किस प्रकार से करना चाहिए, कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो सोशल रिफॉर्म्स है वो भी विज्ञापनों द्वारा जनता के बीच में समय समय पर लाए जाते हैं, जिससे कि उनके बीच में जागरूकता फैल सके, जनता तक उस चीज़ की जानकारी पहुँच सके। जैसे कि पोलियो की जानकारी पहुँचाई जाती है, जल को लेके जानकारी पहुंचाई जाती है। इसी के साथ साथ हर प्रकार की जागरूकता संबंधी जानकारी पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है, इन्हीं विज्ञापन कंपनियों का होता है, सरकार का होता है, जो हम तक समय समय पर इस प्रकार की सूचनाओं को जारी करती है। नेक्स्ट इज राइट इट इन कमेंट बॉक्स, सेंसरशिप एंड पब्लिक प्रोटेस्ट। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Like, share and subscribe. Thanks.